Okay, so we'll solve some questions related to triangles. ठीक है, जिसमें a plus b plus c जो है it is always equal to pi. ठीक है, a plus b plus c is equal to pi. Okay. अच्छा, अगर a plus b plus c pi होता तो दो तीन रिजल्ट्स है which we are supposed to या expected to remember. What are those? Let's see. First वाला, अगर a plus b plus c pi होता तो रिमेंबर sin a plus b is sin c. याद है क्या? sin a plus b is sin c. How? ये देखो, इसका प्रूफ काफी सिंपल है. a plus b जो है वो होगा 180 minus c. And remember sin 180 minus theta is वापस sin theta. ठीक है, तो sin a plus b is sin c. Similarly, sin b plus c is sin a, third angle. Similarly, sin c plus a is sin b. ठीक है, sin पॉजिटिव रहेगा. अच्छा, what about cos? Cos a plus b is minus cos c. Is it? Will it be minus cos c? Why? क्योंकि a plus b की जगह हम लिखेंगे 180 minus c, pi minus c. So cos 180 minus theta is minus cos theta. ठीक है? Similarly, cos b plus c is minus cos a, and similarly cos c plus a is minus cos b. ये दो रिजल्ट्स है. अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट देयर हाफ एंगल्स. ठीक है, माने sin a plus b by 2, sin a plus b upon 2. What about this one? sin a plus b upon 2. ये देखो, sin a plus b upon 2 जो है ये होगा cos c by 2. ये आप लोग 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हो ऑलरेडी, है ना? तो पहले क्या करेंगे, हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे. माने a plus b is 180 minus c, क्योंकि अपने को a plus b by 2 चाहिए, तो c को बाहर लेकर गया और 2 से डिवाइड किया, तो ये sin a plus b by 2 की जगह pi by 2 minus c by 2 और sin 90 minus theta is cos theta. ठीक है, same goes for the other combination as well. sin b plus c by 2 cos c by 2, sorry, cos a by 2. sin c plus a by 2 cos b by 2. ठीक है, so a plus b by 2 होता तो sin बनेगा cos और थर्ड एंगल का हाफ. एंड सेम गोस फॉर cos एज वेल. से cos b plus c by 2, सेम फंडा, cos बनेगा sin और b plus c by 2 becomes a by 2. ठीक है, अच्छा ये थर्ड होना चाहिए. Right? So these are certain things which you'll have to keep in mind. So keeping these things in mind, let's solve some questions. Okay, पहला क्वेश्चन, prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c. Right? Sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c. How do we approach? Approach is pretty obvious. ये देखो, ये इसको देख के कुछ ट्राई होना चाहिए. What is that? देखो, 3 साइन के टर्म्स एडिशन में है, तो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन फॉर्म में लगेंगे. सम टू प्रोडक्ट वाला, सम टू प्रोडक्ट वाला. अब किसी के दो के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो. मान लो अगर आपने पहले दोनों के बीच में अप्लाई किया, ठीक है, वी गोना स्टार्ट विद LHS sin c plus sin d, 2 sin c plus d 2a plus 2b अपॉन 2 माने a plus b. सही है.
देखो हम राइटिंग इट डायरेक्टली, और cos c माइनस डी बाई 2 माने a माइनस b बचेगा, ठीक है। अच्छा तो देखो sin 2c को वैसे के वैसे लिख दिया बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी गोना डू। लेकिन देखो जस्ट इसके पहले हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया कि sin a plus b actually is sin c, isn't it? sin a plus b 180 minus c, sin 180 minus theta sin theta, और ये देखो cos a minus b वैसे की वैसे, plus you see we have 2 sin c here. Now it is pretty obvious कि sin 2c की जगह क्या करें, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा which is basically 2 sin c into cos c। तो क्लियरली 2 sin c कॉमन निकलेगा, तो यहां आएगा cos a minus b plus cos c, okay 2 sin c। Now this is going to be very interesting, this is going to be very interesting। देखो ब्रैकेट में ये ऑलरेडी cos a minus b है, माने a और b के बीच में कंपाउंड एंगल, तो cos c का कोई फॉर्मूला है क्या? अभी डिस्कस किया हमने, cos में नेगेटिव होता है, रिमेंबर। से वी वांट टू फाइंड cos a plus b, दिस इज एक्चुअली माइनस cos c, इसका मतलब cos c इज माइनस ऑफ cos a plus b, माइनस ऑफ cos a plus b। अच्छा ये आया कैसे? हम ऐसे भी कर सकते हैं कि c की जगह हमने लिख दिया 180 माइनस a plus b, और फिर cos c, cos 180 माइनस a plus b, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। बट यू नो ये सब की कोई जरूरत नहीं है, इट्स बेटर इफ यू डायरेक्टली मेमोराइज दिस रिजल्ट्स, इजी रिजल्ट्स है एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। अच्छा अब फिर से कोई फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्या? cos a minus b minus cos a plus b, ये किसका था? प्रोडक्ट का था, रिमेंबर 2 sin, दोनों साइन होंगे, रिमेंबर दोनों अगर साइन होते हैं तो cos a minus b minus cos a plus b, माने दिस इज बेसिकली 2 sin a sin b, ठीक है। प्रोडक्ट 2 डिफरेंस केस में हमने क्या कहा, तो अल्टीमेटली दिस इज 4 sin a sin b sin c, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रूव दैट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 minus 4 cos a cos b cos c। सेम फंडा है, व्हाट डू वी डू, cos c plus cos d, पहले दोनों इसमें cos c plus cos d लगेगा, व्हाट इज cos c plus cos d, 2 cos c plus d, 2a plus 2b is a plus b, तो 2a plus 2b by 2 तो a plus b into cos c minus b by 2, ठीक है, और ये आएगा प्लस cos 2c, ओके सो फार सो गुड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो अभी डिस्कस किया हमने cos a plus b is actually minus cos c, isn't it? cos a plus b is minus cos c, और ये cos a minus b वैसे की वैसे। अच्छा ये देखो पहला क्वेश्चन में ये आया sin c, तो हमने sin का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया ताकि हम 2 sin c कॉमन ले सके। अच्छा इसमें cos 2 थीटा का कई फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, उनमें से कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा? ओनली cos वाला, इजंट इट? क्यों? क्योंकि ताकि हम cos c कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos वाला अप्लाई करेंगे ताकि वी कुड टेक 2 cos c कॉमन,
तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, है ना। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, ये देखो माइनस 1 तो आ ही गया ऑलरेडी। अब इनमें से अगर हमने 2 cos c कॉमन निकाला, अच्छा एक काम करूंगा, पहले मैं माइनस 1 लिख दूंगा, ठीक है, माइनस 1। तो इनमें से आई विल टेक माइनस 2 cos c कॉमन। वाई माइनस 2 cos c कॉमन? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। माइनस 2 cos c कॉमन लिया तो यहाँ cos a माइनस b, यहाँ माइनस cos c, इज इट? अगेन यू सी, अभी अप्लाई किया हमने, cos a प्लस b के जगह माइनस cos c लिखा हमने, तो वही फॉर्मूला वापस अप्लाई होगा, cos a माइनस b, अच्छा माइनस cos c की जगह माइनस ऑफ cos a प्लस b, या माइनस cos c की जगह cos a प्लस b, है ना। cos a प्लस b इज माइनस cos c, माइनस 1 माइनस 2 cos c, ये तो यहाँ कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos वाला डायरेक्ट एडिशन, इट इज सिंपली 2 cos a cos b cos c। तो फाइनल आंसर इज माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। तो ये है कहानी, अगर if these angles were double angles, 2 theta, right? Let's go on to next type. जिसमें स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, show that cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a cos b cos c, right? तो इसके लिए क्या फंडा होगा? स्क्वायर होता तो कुछ कर सकते क्या? स्क्वायर होता तो व्हाट टू डू? रिमेंबर हम एक क्वेश्चन कर चुके ऑलरेडी, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 120 प्लस थीटा, cos स्क्वायर 120 माइनस थीटा, रिमेंबर? उसमें हमने क्या किया कि स्क्वायर को हमने डबल एंगल में कन्वर्ट किया, और शायद से हम कल वाला क्लास में भी डिस्कस किया था हाउ टू कन्वर्ट स्क्वायर्स इनटू डबल एंगल, रिमेंबर? 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 को LHS की तरफ शिफ्ट किया हमने, राइट। तो cos स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, सिमिलरली cos स्क्वायर b की जगह 1 प्लस cos 2b अपॉन 2, और cos स्क्वायर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, मैंने वी डू नॉट नो व्हाट वी गोना डू हियर विद cos स्क्वायर c, कि इसमें भी डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा कि यू नो क्या होगा, वी डू नॉट नो, सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना कीप इट एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हाफ प्लस हाफ गिव्स यू 1, तो 1 तो आ ही गया। अब प्लस ये देखो cos 2a/2 प्लस cos 2b/2, तो उसमें से हाफ कॉमन, ठीक है। तो cos 2a प्लस cos 2b, अभी अप्लाई किया हमने, cos 2a प्लस cos 2b, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, c प्लस d/2, c माइनस d/2, और ये वैसे वैसे, ठीक है, ओके। अच्छा, ये 2 और 2 कटेगा, एंड मोर ओवर यू सी cos a प्लस b इज माइनस cos c, cos a प्लस b इज माइनस cos c, और ये cos a माइनस b, अच्छा यहाँ प्लस cos स्क्वायर c। अच्छा, तो ये cos स्क्वायर c को कुछ करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि देखो दोनों टर्म्स में से cos c वैसे ही कॉमन निकल रहा है, राइट। जस्ट टेक माइनस cos c कॉमन, 1 माइनस cos c अगर कॉमन लिया तो cos a माइनस b
तो ये ऑटोमेटिकली बनेगा माइनस कॉस सी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉस सी इंटू कॉस सी, कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, और वापस cos a प्लस b की जगह माइनस cos c, माने माइनस cos c की जगह cos a प्लस b एज इट इज, प्लस cos a प्लस b। ठीक है, तो cos a प्लस b की जगह माइनस cos c, या माइनस cos c की जगह cos a प्लस b। आगे आगे 1 माइनस cos c, सेम इट इज द सेम थिंग, इज इट, सेम स्टेप, सिमिलर स्टेप्स। तो ये होगा 2 cos a cos b, इसको एक्सपेंड किया तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट डिड वी डू अगेन, हमने पहले स्क्वायर्स को डबल एंगल में कन्वर्ट किया, फिर वापस वही फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया। और देखो ये थर्ड वाला टर्म ना, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑलवेज। यहां हमने cos 2c की जगह हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई किया, सो दैट वी कुड टेक 2 cos c कॉमन। यहां तो डायरेक्टली cos c कॉमन निकल रहा था, तो हमने cos स्क्वायर c को वैसे के वैसे रखा। ठीक है, एक साइन वाला करेंगे। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू 2 sin a sin b into cos c, 2 sin a sin b into cos c। Okay, similar steps. What do we do first? Obviously square to double angle, तो remember square to double angle, साइन के लिए 1 माइनस cos 2 थीटा इज टू 2 नीचे की तरफ, तो 1 माइनस cos 2 है अपॉन 2 इज साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर b की जगह 1 माइनस cos 2b अपॉन 2। और ये देखो माइनस साइन स्क्वायर c वैसे के वैसे, we do not know what we're gonna do with this। okay, so square to double angle। अच्छा, clearly 1/2 plus 1/2 is 1 माइनस, ये देखो माइनस cos 2a/2 माइनस cos 2b/2, तो हमने माइनस हाफ कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में आएगा cos 2a प्लस cos 2b, और बाहर माइनस साइन स्क्वायर c। ठीक है, तो 1 माइनस हाफ ऑफ cos c plus cos d, we have been applying this, cos a plus b, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2। तो 2 और 2 कटेगा, 1 माइनस, अच्छा मोरओवर यू सी, मोरओवर cos a plus b, 2 और 2 कैंसिल, cos a plus b is minus cos c, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस cos c cos a minus b, और देखो माइनस साइन स्क्वायर c वैसे के वैसे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो अपने को cos c चाहिए, cos c चाहिए, तो यहाँ cos स्क्वायर c होना चाहिए था। नाउ इंटरेस्टिंगली वी डू हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर c व्हिच इज बेसिकली cos स्क्वायर c, तो cos c cos a minus b, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर c की जगह लिख दिया प्लस cos स्क्वायर c। तो अब इसमें से cos c कॉमन निकलेगा, जब cos c कॉमन निकलेगा तो ये cos a minus b प्लस cos c। ठीक है, एंड वी डू नो cos c is minus cos a plus b, isn't it? Cos c is minus cos a plus b। तो cos c है ना, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे, बाहर का वाला जो है वो तो आ चुका है ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में, तो cos c की जगह माइनस cos a plus b, तो cos c इनटू, अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है शायद से, है ना,
cos a minus b minus cos a plus b. This is basically 2 sin a sin b. तो आ गया 2 sin a sin b cos a. तो अगर डबल एंगल होता तो डायरेक्ट sin c प्लस sin d. अगर स्क्वायर होता तो पहले हम उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करके फिर से sin c प्लस sin d अप्लाई करेंगे या cos c प्लस cos d. ठीक है. अच्छा, तो ये हो गया स्क्वायर वाला, राइट. What if there is only there is no double angle, there is no square, just sin a sin b sin c. ठीक है. Let's try the next set questions. Now I'm going to give you 1 or 2 questions as homework based on this. एक टाइप के लोग एक क्वेश्चन as homework. Question number 5. Prove that sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. Right. So what do we do here? Do you think our approach will change? No. अभी भी देखो sin c plus sin d ही है. We still apply sin c plus sin d. There's no difference. There's no change over there. Sin c plus sin d. 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. सही है. अच्छा, sin c तो वैसे के वैसे. अच्छा, ये देखो sin a plus d by 2. अब देखो हाफ हाफ आ गया, इसका मतलब sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा. रिमेंबर अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता तो यू नो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर. तो sin a plus b by 2 is cos c by 2. है ना. कैसे? रिमेंबर a plus b plus c is 180. a plus b is 180 minus c डिवाइड बाय 2. ठीक है. तो cos a plus sin a plus b by 2 का मतलब sin 90 minus c by 2. sin 90 minus c by 2 is cos c by 2. ठीक है. और ये cos a minus b by 2 as it is plus. Now you see it is pretty obvious कि 2 cos c by 2 लाना है. माने डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ sin. तो 2 sin c by 2 cos c by 2. ठीक है. अब 2 cos c by 2 कॉमन निकलेगा तो यहां ब्रैकेट में बचेगा cos a minus b by 2 और यहां बचेगा sin c by 2. ठीक है. ये 2 cos c by 2 वैसे के वैसे. अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा cos a by 2 minus b by 2 प्लस. ये देखो यहाँ कंपाउंड एंगल है a और b के टर्म्स में, लेकिन यहाँ है थर्ड एंगल c. सो इज देयर अ वे टू कन्वर्ट थर्ड एंगल इनटू कंपाउंड एंगल a एंड b? यस. रिमेंबर अगर जब भी ना वो हाफ एंगल होता sin c by 2 होता तो वो 90 वाला फंडा अप्लाई होगा. ठीक है. तो c by 2 की जगह ये देखो ये ऐसा होगा. तो c by 2 is 90 minus a plus b by 2. ठीक है. c by 2 is 90 minus a plus b by 2. sin c by 2 sin 90 minus theta cos theta cos a by 2 plus b by 2. ठीक है. More or less the question is solved here. You see it's in the form of cos a plus b plus cos a minus b. So cos a plus b plus cos a minus b. Product formula 2 cos a cos b. So in this case it is 2 cos a by 2 cos b by. So ultimately multiply किया तो ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. So same फंडा है, isn't it? It's the same thing. अच्छा, एक cos वाला करेंगे. Prove that
cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. Right? Same formula, apply factorization formula. Cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. और देखो थर्ड टर्म वैसे के वैसे अभी के लिए. अच्छा, और ये देखो cos A plus B by 2 कन्वर्ट होगा साइन में sin C by 2. नाउ थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग. अब cos C की जगह क्या करें? देखो इधर तो सारे हाफ एंगल फॉर्मूले है ना, तो क्लियरली डबल हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा. लेकिन कौन सा, साइन में कि cos में? साइन में, क्योंकि वी शुड बी एबल टू टेक दिस कॉमन, इजंट इट? तो cos थीटा माने cos 2 थीटा is 1 minus 2 sin square theta, right? So 1 minus 2 sin square इसका आधा, ठीक है. और ये 1 वैसे की वैसे 1 as it is, ठीक है. अच्छा, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? अच्छा, यहाँ बीच में देखो प्लस साइन है, इस मतलब हम प्लस 2 sin C by 2 कॉमन लेंगे, ठीक है. तो यहाँ बचेगा cos में इसको ऐसे लिखूंगा A by 2 minus B by 2 minus sin C by 2. So 1 plus 2 sin C by 2. तो ये cos A by 2 minus B by 2 minus, ये देखो इसके पहले किया था हमने sin C by 2 is sin 90 minus A plus B by 2 माने cos A plus B by 2. तो इसकी जगह हमने लिख दिया cos A by 2 प्लस B by 2, ठीक है. अच्छा, आंसर तो आ ही गया शायद से. cos A minus B minus cos A plus B, 2 sin A sin B. So 2 sin A by 2 sin B by 2. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया, ठीक है. So you see, these were some nice questions. I'm going to give you 3 questions as homework, है ना, based on this, right? So please note these questions, है ना. एक डबल एंगल, एक स्क्वायर, एक जस्ट एन एंगल. Number 7. Try this as homework. Sin 2A plus sin 2B minus sin 2C is 4 cos A cos B sin C. Cos square A plus cos square B minus cos square C is 1 minus 2 sin A sin B cos A. Sin A plus sin B minus sin C is equal to 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. ठीक है. So I'd like you to try these questions as homework. So there you go. This is your angles based on angles of a triangle. Questions based on angles of triangle.